ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਪਮਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਪਮਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 9 ਹਿੱਸੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਵੀ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨੇ ਖਾਨਾ ਕਵੀ ਰਹੀਮ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ ਰਹੀਮ ਦੁਹਾਵਲੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਠਾਨ ਸੀ ਕਾਬਲੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੜਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ, 1 ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 9 ਹਿੱਸੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ, ਔਖਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਲੋਗ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਕਹੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਬਰੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਤਸਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਅਤਨੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਨੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਅਤਨੇ ਹੋ, वो धोए मल मूत्र कर, ये रस ना लख लियो। मां बाप ने मेरा मल मूत्र साफ कीता सी हत्थां नाल, निंदक ते जबान नाल करदा है। मैं तो मां बाप नालों भी वड्डा दर्जा देना। दया राम। चलो एक संत दे होर भी बोल मैं थोड़े सामने रखदे हां। संसारी अपनी निंदा सुन के बड़ा दुखी होंदा है, अपनी उपमा सुन के बड़ा खुश होंदा है। भगत अपनी उपमा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के खुश होता है। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। यह भी महर्ज करते हैं। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते ने, अज सोहबत दोस्त रंजम, मैं दोस्तां तो दुखी हाँ, मित्रां तो दुखी हाँ। लोकी ते मित्र बनांदे, कदम कदम ते मित्र लभदे ने, वो भी मित्र होवे ते वो भी मित्र होवे, सारे अपने मित्र होवन।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਜ सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक के बदम हुस्म नुमाए। मेरे औगुणा नूं गुण कहंदे ने, मेरे पापा नूं पुन कहंदे ने, मेरियां गलतियां नूं सही कहंदे ने। मैं इन्हां दोस्तां तो दुखी हां। मेरी बद इखलाकी नूं ही इखलाक आखदे ने। की करा? अज सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक के बदम हुस्न नुमायत ऐबम हुनरो कमाल बेनत। मेरे ऐबा नूं कहंदे ने कमाल दियां खूबियां ने, औगुणा नूं गुण आखी जांदे ने। ऐबम हुनरो कमाल बेनत खारम गुल या समीन मायद। मेरे कंडियां नूं चमेली दा फुल कहंदे, यासमीन चमेली नूं कहंदे। मेरे कंडियां नूं चमेली दा फुल कहंदे ने, मेरे औगुणा नूं गुण कहंदे ने, मेरी बद इखलाकी नूं इखलाक कहंदे ने, मेरे पापा नूं पुन कहंदे ने। कहंदा इन्हां दोस्तां तो मैं दुखी हां। को दुश्मन शौक चशम बेबाक। मैं लभदा फिरदा उस बेबाक दुश्मन नूं। पता है बेबाक किस नूं कहंदे? मुंह फट जो आया कह दिता, नहीं परवाह करनी, उन्होंने बेबाक कहंदे। मौका महल गल ना करनी, बस एवें मुंह फटिया कह देंदे ने, ये ते मुंह पाटा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की निर्माणता मैं देख के दंग रह जाना। साहब कहते ने बदबख्त हम चों बखील गाफल, लंग राग दा शब्द है। महाराज कहते ने, हे प्रभु अपनी कोई चंगी किस्मत नहीं है, तेरे दीदार हो सकन साडे कोई इस तरह के नसीब नहीं है, साडी कोई इस तरह की किस्मत नहीं है। बदबख्त हम चों बखील गाफल, तो मैं चुगल खोर भी हाँ, अगले ने चुगली करके काम बिगाड़ देना। गाफल अचेत भी बड़ा, नादान भी बड़ा। बदबख्त हम चों बखील गाफल बेनजर बेबाक। सच नू वेख सका, हे मेरे मालिक मेरे को अखां भी कोई नहीं। बेनजर बेबाक, मुंह फटा मैं सोच समझ के कोई गल ही नहीं करता, वो जिहड़ी आ गई कह देती कह देती। बदबख्त हम चों बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक भगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। नहीं तेरे दीदार ते चलो ना सही, नहीं तेरा मिलाप ते चलो ना सही। जो तेरे मार्ग ते चलदे ने उन्हां दे कदमां दी खाक ही बना दे, उन्हां दे चरनां दी तोड़ बना दे गुरु नानक। बदबख्त हम चों बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक भगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। खैर सादी कहंदे को दुश्मन शौक है चशम बेबाक। ओ बेबाक दुश्मन किथे है, मुंह फट दुश्मन किथे है। को दुश्मन शौक है चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बमन नुमायद। जो मेरे मुंह दे उत्ते मेरे औगुणां दा जिक्र करे, मेरियां गलतियां दा जिक्र करे, मेरी बद इखलाकी दा जिक्र करे, मेरी मूर्खता दा जिक्र करे। क्यों? अपने चेहरे दे उत्ते कोई धब्बा होवे ते अपनी अखां नहीं देख सकदियां, दूजे दी देखदियां। अपनियां गलतियां मनुख नूं नहीं दिखाई देंदियां, क्योंकि बहुत नेड़े ने। बहुत जो नेड़े होवे अख नहीं देखदे। अखां दे उत्ते मैं किताब रख लवां पढ़ सकांगा, अखर नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां दिखाई देगी नहीं। अपना आप बहुत नेड़े है, अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, दूजे दी दिखाई देंदी। दूजा दूर है, देखने वास्ते थोड़ी दूरी चाहिए। अपनियां गलतियां नहीं दिखाई देंदियां। जिस मनुख नूं अपनियां गलतियां दिखाई देंदियां, अपनियां भुल्लां, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। और ओ पता की कह देगा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तो जो भलो सबको। सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे ने। क्यों? ऐसा मनुख सारियां नूं उपरों उपरों देखण लग पैंदा है। उपरों उपरों ते हर एक चंगा है, उपरों उपरों ते हर एक ज्ञानी है, दानी है, शरीफ है, गुरमुख है। उपरों उपरों ते सारे चंगे ने। ऐसा मनुख चूंकि अंतर्मुखी हो जाता है, संसार नूं उपरों उपरों देखदा है, ते सारे संसार दे ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ।
ये अंतर्मुखी दी पहचान है जब अपनियां ही गलतियां दिखाई ले। आप सुन के हैरान होवोगे, बिदर व्यास का लड़का है, पर यह नौकरानी दे राही पैदा होया है, दासी राही। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगर सैन को राज दिए, पत्नी छोड़ गई सी व्यास नूं। कसूर करूप है बहुत, इसनूं देखना औखा है। ऐना करूप, इतना भद्दा मनुख, इतनी इसकी शक्ल, पत्नी छोड़ के चली गई। ये दासी की कुख तो पैदा होया है बिदर। इस वास्ते बिदर नूं शूदर कहंदे सन। दासी का लड़का है, गोली का लड़का है, नौकरानी का लड़का है। दासी सुत, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे ये प्रमाण मिलता है। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगन सैन को राज दिए। पर इस बिदर नूं कृष्ण ने गल नाल लाया। एक ऋषि दे घर ऋषि आया। अक्सर ऐसा होता है। कृष्ण ने गलवकड़ी च लिया। जब हस्तिनापुर पहुंचे तो नाल दे एहलकार श्री कृष्ण नूं कहंदे ने, भगवान उतारा किथे करना है? असी दुर्योधन नूं इतला कर दी, एक राजे दे घर ठहरना ठीक होंदा है। एक राजे दे घर ही ठहरे, और एक राजे लई एक राजा ही इंतजाम कर सकता है, दूसरा नहीं। तुहाडे नाल लाव लश्कर है, तुसी हो। तो दुर्योधन नूं इतला कर दी गई है। आप दे रहन बहन का उन्होंने पूरा इंतजाम किया। कृष्ण कहन लगे, आपां बिदर दे घर जावांगे, इतना इंतजाम नहीं है उत्थे। तुहाडे नाल इतना लाव लश्कर का इंतजाम असी खुद करांगे। असी ठहरांगे बिदर दे घर। हैरानगी और स्वागत लई दुर्योधन खड़ा रहा, उड़ीकदा रहा। बूहे थे, महलों के बूहे थे, नहीं पहुंचे। कि कन्ना दे जद खबर पहुंची कि बिदर दे घर चले गए, तो फैसला किया रात भी उत्थे ही कटनी है। तो क्षमा करनी, सवेरे ये बड़ा रुखा बोले है दुर्योधन कृष्ण। भाई गुरदास ने लिखे, आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। बहुत रुखा बोलता है। राजा हो के भी ग्वाले दा ग्वाला रहे हैं, तो गुजर दा गुजर रहे हैं। साडे नौकर दे घर ठहरे हैं। नौकर है बिदर साडा, साडे राज सभा दे दीवान है, सलाह मशवरा देने वाला, सलाहकार रखे सी। मुलाजम है साडा, मुलाजम दे घर रहे राजे हो के। कृष्ण का जो जवाब है वह भगत कबीर ने अपनी बाणी च कलमबंद किया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। है राजन तेरे घर कौन आवे, कौन ठहरे तेरे घर? राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। वो गरीब मैनू बहुत चंगा लगता है। परमात्मा की भावना है उसके अंदर। दुर्योधन कहंदा है, इत्थे असीं इतने पकवान बनाए तुहाडे खाण लई, ते तुहाडे मनोरंजन लई नर्तकियां बुलाईयां, राग रंग दी महफिल सज सके, चोटी दे संगीतकार बुलाए। उस गोले दे घर खाण नूं की मिलिया होवेगा? तो कृष्ण ने जो कुछ किया है, कबीर कलम बंद कर देने, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहाने। तेरे घर राग रंग दे रात व्यतीत होनी सी, उत्थे असीं सारी रात हरि दा कीर्तन करते रहे मिल के, गुण गावत रैन बिहाने। तेरे घर की फिजा ऐसी नहीं सी कि मैं सारी रात गीत गा सकां प्रभु दे। तेरे घर का माहौल ऐसा नहीं सी कि मैं सारी रात बंदगी कर सकां। गुण गावत रैन बिहाने। शायद तेरे 36 प्रकार के पकवानों के भी वो स्वाद ना आउंदा जो अलोने साग दे मैनू मिले, जो बिदर ने बनाया सी, बिदर की घरवाली ने बनाया। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात न काहूं की वानी। हालांकि अछूत सी, शूदर सी, दासी का लड़का होने के नाते, लेकिन हिरदे दे तल ते, ज्ञान दे तल ते उच्ची ऐसी हस्ती कृष्ण का तालमेल बैठे। दुर्योधन नहीं सुन सकिया, कृष्ण नूं सुन सकिया। 17 दिन समझाते रहे कृष्ण, रब्बी बोल रखते रहे उसके सामने, परमात्मा दे बोल रखते रहे, और कृष्ण बार बार दावा कहते सन, रब्बी सिद्धांत यही है,
ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 5 ਸੂਈਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਪੇ ਤੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਝੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਕਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, अगर इस हिसाब नाल भी चेहरा करूप है तो वाकई ये मनुख ठीक नहीं होवेगा। तो दुनिया के बेशतर संत महापुरुष उन्होंने धार्मिक दुनिया चो एक पासे करना पेगा। भारत का प्राचीन संत ऋग्वेद व्यास जिन्हें 4 वेद लिखे, 6 शास्त्रां दे चों वेदांत शास्त्र का रचयिता व्यास है। भविष्य पुराण लिखिया, गीता लिखी, महाभारत लिखिया। और पंजाब का वगदा होया दरिया एक इसे ऋषि के नाम से है, व्यास। इसे दे कंढे बैठ के इसने लिखे। उस जमाने का सब तो करूप बंदा, उस जमाने का। अगर इसके चेहरे तो अंदाजा लगाइए तो कुछ भी नहीं, पर ये बोलां नूं सुनिए तो बड़ी गल हैरानगी होंदी है। इस करूप तन दे चों, इस करूप मुंह मथे दे चों इतना स्वपन निकले, इतनी सुंदरता निकली है, इतना जमाल निकले, इतना कमाल निकले। कहते ने जनक दा गुरु अष्टावकत अपने जमाने का सब तो करूप बंदा। अगर बाहरों ही अंदाजा लाना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चे अंदाजा ला सकते हैं। कहते ना अष्टावकर बाहर निकलता सी, बच्चे पत्थर मारते सन, उस बच्चे पागल पागल करके कहते सन। लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र 8 थावां तो टेढ़ा। यकीन जानो, मनुख ना अपनी नक राही प्रगट होंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट होंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट होंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतस्करण प्रगट होंदा है उसदे बोलां तो। बोलत ही पहचाने है साध असाध को थात। इन्हां बोलां दे च दुख है, इन्हां बोलां दे च प्रसन्नता है, इन्हां बोलां दे च मूर्खता है, इन्हां बोलां दे च ज्ञान है, इन्हां बोलां दे च नफरत है, इन्हां बोलां दे च प्रेम है, इस बोल दे च वितकरा है, इस बोल दे च समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसते हैं, बोलां तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमत आ मैं प्राचीन सनातनी ऋषियां नाल के 99% मनुख अपने बोला राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहते ने घट तो घट 90% मनुख अपने बोला राही प्रगट होंदा है। 10% बाकी अंदाजा कोई सियाणे ला सकते हैं, कोई विरले। नेत्र वेख के, इसदे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर यह हर बंदे दी खेड नहीं आउंदी। जिससे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा ते पदार्थ दे गहरे तल दे च नहीं जांदा। हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां दी गहराई चला जाए। हर मनुख चित्रकार भी नहीं आउंदा कि रंगां दी बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जानो, एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है, पर एक चित्रकार नूं उसे एक दरख्त दे पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनू नहीं पता चलना सी। एक कवि है अक्सर दास दे नाल इंडिया दे भ्रमण करता है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन। और चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां और धार्मिक स्थानां दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां। एक दिन शौकिया तौर पर किधर मेरी तस्वीर बना के लिया। मैं कि तू तो बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर दे पहाड़ दे कोल एक दरख्त उसनू पसंद आ गया। कहंदा मैं इहदी तस्वीर बनानी है। कि मैं क्या ठीक है बना। कहंदा इत्थों रंग मिल जाणगे। मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो। मैं रंग तैनू ले देने।
हरा रंग तैनू चाहिदा होना है? कहंदा नहीं ज्ञानी जी 10-15 रंग चाहिए ने। मैं तो दरख्त हरा है ते दरख्त की तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त का चित्र बनाना है? कहंदा नहीं, दरख्त दे सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त दे सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने, सारे तो हरा ही है। कहंदा नहीं, इन्हां हरे पत्तियां दे भी सैकड़े तरह का हरा रंग है, मैनू देने पैणगे, एक रंग नाल गल नहीं बनेगी। तो एक चित्रकार जितना रंगां दी गहराई च जांदा है, आम मनुख नहीं जा सकता। आम मनुख ने तो दिसेगा दरख्त हरा है, पर यकीन जानो किथे गहरा हरा है, किधरे फिक्का हरा है, किधरे कुछ थोड़ा जिहा जर्दी मायल है। ये बहुत सारे रंग इक्को ही दरख्त दे एक चित्रकार नूं दिखाई दे सकते हैं, दूसरे नूं नहीं। तो जैसे हर मनुख कोई चित्रकार नहीं होंदा, हर मनुख संतराश नहीं होंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं होंदा, हर मनुख दार्शनिक नहीं होंदा, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं होंदा। हर मनुख का सिर्फ मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं अंदाजा ला सकता। अगर अंदाजा लांदा है तो करीबन गलत होंदे ने अक्सर लोगों के, क्योंकि मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलां राहीं। प्राचीन ऋषि मुनियां के कथन अनुसार 99% अज दे धार्मिक आचार्य कहते हैं 90% मनुख अपने बोलां राहीं प्रगट होंदा है। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं परमात्मा ते शब्द राहीं प्रगट होंदा है, पूरे का पूरा बोलां राहीं प्रगट होंदा है। जे बोलां राहीं प्रगट होंदा है तो बोल किहड़े ने? ठाकर हमरा सद बोलन था, कदी चुप नहीं करता। थोड़ा जिहा मैं अर्ज करदे हाँ, ईश्वर एक व्यापक शक्ति है, सता है। अगर वो व्यापक है तो फिर उसका वेखना व्यापक है। ये नहीं कि गुरुद्वारे च वेखदा है ते मस्जिद च नहीं देखदा, मस्जिद च देखदा है ते मंदिर च नहीं देखदा, मंदिर च देखदा है ते बाजार च नहीं देखदा, या बाजार च देखदा है ते घर बाहर च नहीं देखदा। व्यापक है, उसका वेखना व्यापक है, उहदी नज़रां दे थल्ले सब कुछ है। पेखत सुनत सदा है संगे। शरीर मेरा सीमित है, थोड़ा सीमित है। तुसी अपने घर तो इत्थे आए हो, तो हुण मैं अर्ज करा अखां इत्थे काम कर रही ने, या कोई मनुख ये तो नहीं आख सकता मैं इत्थे आ गया, मैं अपनी अखां घर छोड़ के आ गया, अपने कमरे दे रख के आ गया। मनुख जिथे है उहदियां अखां उत्थे ने। अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसकी अखां व्यापक ने। अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसका बोल व्यापक है। अगर ईश्वर व्यापक है तो उसकी स्रोत व्यापक है, उसका सुनना भी व्यापक है। ये नहीं कि एक थां ते सुनदा पे, तो फिर जिस थां ते सुनदा पे उत्थे ही है रब, बाकी थावां ते नहीं है। फिर जिथे वो वेखदा पे उत्थे ही है, बाकी थावां ते नहीं है। जैसे मनुख बारे कह सकते हैं, जिथे इसनूं सुनाई दे रहा है बस ये मनुख उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। जिथे वेखदा पे है बस उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। ज्ञान इंद्रे मनुख दे कोल बड़े सीमित ने, क्योंकि मनुख आप सीमित है। इहदा कद बुत नापिया जा सकता है, इसकी सारी शक्ति नापी जा सकती है। विचारक तो ऐसा कहते हैं मनुख की विचार शक्ति भी नापिया जा सकता है, सोच शक्ति भी नापिया जा सकता है। कितना सोच सकता है, कितना विचार सकता है, ये विचार कितने तक जा सकते हैं। आखिर मनुख थकदा है, टुटदा है। एक साइंटिस्ट भी खोज कर करके थकदा है, तो थकावट इस गल का सबूत है हुण मैं अगे काम नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, इस तो अगे मेरी सोचनी नहीं जाती। ब्रह्मे ने हट कीता कि जो कुछ भी जगत दे च है ईश्वर तो प्रगट होया है, मैं सब कुछ लिखत दे च लियाना है, और सब कुछ जगत दा ही रूप नहीं बयानमय करना। जिथों जगत आया है वो भी सारे दा सारा मैं लिखना है, अपनी लेखनी च लेना है, अपने बोलां च लेना है, अपनी लिखत दे च लेना है। कहंदे ने श्रोतियां दी महफिल दे ते सुते सन देवते, देवते तो मुराद ज्ञानियां दी महफिल सी। देवता कहने जिथे ज्ञान दा दीवा जल गया, ये ज्ञानियां च कथा करदा सी, देवतियां च कथा करदा सी। और इसदी एक हट सी, इसदी एक जिद सी, जिथे कोई श्रोता नहीं मैं उत्थे नहीं बोलना। एक दिन शिव जी ने साफ कह दिता सी कि सारे श्रोते ही तेने आए ने थानू सुनन लई। कहना नहीं, कोई भी श्रोता नहीं, सबदी अपनी अपनी कामना, सबदी अपनी अपनी वासना है। हर मनुख अपनी कामना नूं सुन रहा है,
हर मनुख अपनी वासना ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, हर मनुख अपनी समस्या 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, शिव जी ਤੇ विष्णु। एक शिव पुराण ਦੀ कथा है, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ब्रह्मे दे बोल। मैं जो कुछ बोलना है ऐ शिव जी ये थोड़ी लोड़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं कहना है वो थोड़े कोल है, जो कुछ मैं कहना है वो विष्णु कोल है। मैं आनंद की गल करनी है, प्रेम की गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं बैराग की गल करनी है, त्याग की गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं सबर की गल करनी है, संतोख की गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं शुद्ध हिरदे की गल करनी है, ज्ञान की गल करनी है, थोड़े कोल है। एवें मैं कप्पा फिजूल वकत जाया करना। ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰੋਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਾਥਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਤਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। इन्हां सारियां ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ एक दिन ब्रह्मा कहता है, मैं वो कुछ लिखना चाहना कि सब कुछ मेरी लेखनी 'ਚ आ जाए, मैं वो कुछ कहना चाहना कि सब कुछ मेरे कहने 'ਚ आ जाए, मेरे कहने तो बाहर कुछ भी ना होवे, मेरी लेखनी तो बाहर कुछ भी ना होवे। विष्णु ने कहा, ले मैं तेनों असीस देना कि तेनों सफलता मिले, मैं तेनों असीस देना। शिव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे आ सकता है। ये भांडा कितना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि दा ये भांडा कितना क वड्डा है। ये सब कुछ आ जाएगा, जिस दिन आवेगा मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, अज नहीं। शिव जी जी कहता है, जिस दिन सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे विच आ जाएगा मैं उस दिन थानू असीस देंगा। विष्णु कहता, मेरा आशीर्वाद तो अपने काम दे सफल होना है। बुढ़ा हो गया, खोज करदियां बिरध हो गया, अखां जवाब देन लग पईयां, काफ़ी बजुर्ग होया। इन्हां अखां 'ਚ एक दिन देवतियां दे 'ਚ बैठा कथा सुनानी है, ते पता की आखे इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना, ते रो पिया। अखां सजल हो गईयां, फिर ज़ारो ज़ार रो पिया। ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ विष्णु भी बैठा है, शिव जी भी बैठा है। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? नेति नेति। जो कुछ भी मैं कहा है ये नहीं है, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये आखिरी बोल ने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए। नेति नेति। जो कुछ मैं खोजे है ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं, और सब कुछ मेरे अकल दे भांडे 'ਚ नहीं आ सकता। नेति नेति। धार्मिक जगत दे ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए। नेति नहीं है, ये भी नहीं। जो कुछ मैं कहा है ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं। मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिव जी ने की आख्या, जिस दिन किसी को ऐसा महसूस होता है मैं अधूरा कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होती है, उस तो पहले होंदी भी नहीं। उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं। और जब सागर हो जाती है तो फिर उसनों कहने की लोड़ भी नहीं पैंदी, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, दुनिया भर दे
इस तरह के दार्शनिक चिंतक विचारक अवतारी पुरुष इन्हां दा कहना है 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। कृष्ण की ने ये गीता पढ़नी पएगी, राम की ने रामायण तो पता चलेगा, उपनिषदां दे ऋषि की ने ये उपनिषदां नूं पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया किसी भी उपनिषद ते लिखारी दा नाम नहीं है। काठोपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दियां 8-10 उपनिषदां दास ने देखिया। मैं हैरान, ये आखिर लिखिया किसने? ये उपनिषदां किस दियां ने? कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदां ने तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां दे उपनिषद दी आखिर दे कहने ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते ने मेरे छुपे रहन दी चाह, हुण ते छुप जाइए, ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत भीखन जी कहते ने अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया। छुपाने की कोशिश की है, पर मैं चलो अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, पर जिसनों छुपाने की कोशिश की वो तो प्रगट हो गया। जिसनों छुपाने की कोशिश की है कितों प्रगट होया? बोला तो परमात्मा बोला राही प्रगट होंदा है। ठाकुर हमरा सद बोलन था, ठाकुर सद बोल रहा है, ये बोल जिस दी पकड़ दे आ जाना सी उसनों कहने ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मुहम्मद साहब ने कह दिता सी कुरान खुदा दे बोल ने नाजल होइया ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा उसने ही कह दिता हाँ मैं ऐलानिया कह सकती है थोड़े बोल नहीं ने, क्योंकि तुसी अनपढ़, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजां नूं इस ढंग दी तरतीब नहीं दे सकते जिहड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हाँ कि मैं दावे नाल कहनी है बोल थोड़े नहीं ने, ये तुसी नहीं बोल सकते। और उत्थे मोहम्मद साहब कहते ने मैं किथे बोल सकदा, खुदा बोल रहे, ये नाजिल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहने ने इस्लामी जगत दे मुसलमाना दी गिनती खदीजा तो होंदी है, पहली मुसलमान है, इस तो बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत दे विचारक भी ऐसा कहते ने, पहला सिख बेबे नानकी। स्त्री के अंदर भावना बड़ी प्रबल होती है, भरोसा बहुत छेती करती है, सुभावक। पुरुष के अंदर तर्क बड़ा प्रधान होता है। एक दफा परमात्मा भी साक्षात किधरे प्रगट हो गए, किंतु परंतु उस नाल भी करेगा, इसने करना है, इसकी अकल ऐसी है। मनुख तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है, भावना दे पिछे तर्क चलती है स्त्री दी, पुरुष तर्क दे पिछे भावना चलती, पहले तर्क, पहले खंडन मंडन। जब दोवें बराबर होन, तर्क ते भाव, अकल चाहिए उन्होंने समझण लई, हिरदा चाहिए उस नाल जुड़न लई। जिस दिन समतल आउंदे ने कहंदे ने उस दिन ही असलियत ते सच्चाई मनुख दे अंदरों प्रगट होंदी है। उस दिन स्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं कि भेद मिट जाता है, क्योंकि भाव ते ज्ञान, प्रेम ते ज्ञान दोवें बराबर हो जाते हैं, समतल। इसे नूं कहंदे ने स्त्री पुरुष एक हो गए। और जिस दिन अंदरूनी तौर पर एक हो गए, भाव ते ज्ञान एक हो गया, बाहर भी सब एक दिखाई देता, दो नहीं दिखाई देते। अगर स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो गुरबाणी भी कहती है, धार्मिक इतिहास भी कहता है, ना एक नाल जुड़े है, ना एक नूं समझे है, ना एक नूं इसने जाने है। ते मैं इतनी भी अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूल मंत्र एक तो आरंभ होता है, कि जिसनों एक दिखाई देता है तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए। मीरा नचदी हुई द्वारकाधीश के मंदिर दे चली गई, इस मंदिर दे स्त्री दे प्रवेश की ममानियत सी, बई स्त्री नहीं जा सकती, बंदिश सी। हुण ते यहूदियां दे मंदिर दे स्त्रियां नहीं जा सकदियां। इस्लाम दे भी पुरुषां दी कतार दे नमाज स्त्रियां नहीं पढ़ सकदियां। जैन धर्म भी कहता है स्त्री चोले च मुक्ति भी नहीं है। अगर स्त्री साधना करे
जप तप करे इनू अगला जन्म पुरुष का मिलेगा, फिर जप तप करे साधना करे फिर मुक्ति मिलेगी। उंज नहीं, इस चोले च नहीं, इस काया दे च नहीं। इसनों हिंदुस्तान के बाकी अवतारी पुरुषों ने नहीं मने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी नहीं मने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक मंदिर दे प्रवेश बंद सी, इस्त्री रही, पर जिस ढंग नाल ये गीत गांदी हुई प्रवेश कर रही सी, लोगों की हिम्मत ना पई उन्होंने रोकण दी। एक प्रभाव होंदा है भजन का, सच्चाई का, बैराग का, प्रेम का एक अपना प्रभाव होंदा है। और कई दफा ये हड़ की तरह होवे तो देखने वाले भी उस हड़ दे बह जाते हैं, किसी को रोकण की हिम्मत नहीं पई भी रोकीए। गीत गांदी अंदर चली गई, पुजारी के हथ दे थाल सी आरती उतारन लई गिर गया। स्त्री आ गई, एक स्त्री आ गई, अछूत आ गई, शूदर आ गई, मंदिर भ्रष्ट कर देता। मीरा ने दो बोली सिर्फ कहने हैं, पुजारी अजे स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, एक कदों दिखाई देगा? ये मीरा दे बोल, अजे भेदभाव है, कदों तक ये आरती उतारता रहेगा, कदों तक इस कर्म कांड दे फसिया रहेगा? एक नहीं, अजे भी एक दा बोध नहीं, अजे भी एक दी खबर नहीं। तो खैर इसनों विस्तार सहित बयान करने तो पहले मैं इतनी अर्ज कर दिया कि परमात्मा भी 100% अपने बोला राही प्रगट है। केड़े बोल? जो अवतारां दी पकड़ दे चाहे, भरोसा उथे करना पएगा। मोहम्मद कहते ने बोल मेरे नहीं ने, खुदा दे ने नाजल होए ने। गुरु नानक कहते ने बोल मेरे नहीं ने, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, और आपों बोल ना जानदा, और कहा सब हुक्म आओ जी। ये खसम दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे आ जाने, जो सुन लेंदे ने, बस उसनूं अवतार कहंदे आ। एक 5 साल का बच्चा है और उसके सामने किधरे दो नौजवान 25-30 साल दे गुफ्तगू कर रहे ने, गलबात कर रहे ने। देखण नूं ते असीं कहांगे बच्चा भी सुन रहा है, पर मैं अर्ज करा नहीं सुन रहा, क्योंकि जिस पद्धर की गुफ्तगू कर रहे ने, इस बच्चे नूं की पता ये नहीं सुन रहा, कतई नहीं सुन रहा। इसनूं की पता की आख रहे हैं। कहंदे ने एक बच्चे नूं कुछ भी नहीं पता जवानी की है, एक जवान नूं कुछ भी नहीं पता बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नूं कुछ भी नहीं पता मौत की है। मर के ही पता चल रहा है मौत की है, इस तो पहले सिर्फ गल्लां ही गल्लां ने। बुढ़े होके ही पता चल रहा है कि वास्तविक बिरध अवस्था की है, जवान होके ही पता चल रहा है जवानी की है, इस तो पहले नहीं। ब्रह्म ज्ञानी बन के ही, भगत बन के ही पता चल रहा है भगवान की है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, इस तो पहले नहीं पता चल रहा। कुछ भी बोध नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो एक बच्चा वाकई एक बुजुर्ग नूं सुन रहा होवे, एक जवान नूं सुन रहा होवे, बस देखण मात्र सुन रहा, नहीं सुन रहा, कतई नहीं सुन रहा। जो परमात्मा नूं सुन लवे वो अवतार है, सीधा सुन लवे, ते जो अवतार दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे समर्थ हो जाए, भगत है, ब्रह्मज्ञानी है, संत है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, जो सीधा परमात्मा नूं सुन सकदा है। ठाकर हमरा सद बोलंदा, हर वक्त बोलदा पिया, हर थां ते बोलदा पिया, असीं सुन रहे हैं, उसनूं सुन रहे हैं, वो हर वक्त बोल रहे हैं। जो सीधा सुन लैंदा है बस उसे नूं अवतार कहंदे। और जो अवतारां दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे सफल हो जाए, बस उसे नूं गुरसिख कहंदे ने, ब्रह्मज्ञानी कहंदे ने, भगत कहंदे ने, साधु कहंदे ने, संत कहंदे ने। कि किसने गुरु दे राही जाने है ते समझे है ते जुड़े है। गुरु नूं सुनना किधरे सौखी खेड़ ना समझ लेनी, कदी कदाई कोई एक कद सुन लै। बाणी सुनदे असीं गुस्ताखी माफ,
दो जवाना दी वाशना भरी गल जो गुफ्तगू दे चल रही है, एक 5 साल का बच्चा सुन रहा है। की सुन रहा है? खाक सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा। चार बुढ़े बैठे ने, वृद्ध अवस्था दी मजबूरियां दा बखान कर रहे ने, जिक्र कर रहे ने। ये चार जवान की समझनो की आख रहे हैं, कितों की गल कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। अगर कोई बच्चा जवान नूं सुनन दे सफल हो जाए, ये बच्चा बच्चा नहीं रहा, ये महान है अकल दे तल ते। ये अकल दे तल ते जवान हो गए, भावें शरीर दे तल ते नहीं होया। अगर एक जवान बुढ़े नूं सुनन दे सफल हो जाए तो ठीक है, शरीर भावें इसदा बजुर्ग नहीं होया, यदि अकल ते बजुर्ग हो गई, महान हो गई है। और एक बुढ़ा मौत दी आवाज सुन लवे, लोग ते मरदे दम तक भी मौत दी आवाज नहीं सुनते। मौत बूहे ते खड़ी है, खटखटा रही है, बोल रही है, तां भी नहीं जो है सुनते उसनू। बल्कि एक आलम दा कहना है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। कहंदा हद हो गई, तेरी कबर दे उत्ते भी जिंदगी दे बोल, जीवन दे बोल, जन्म दे बोल। मर के भी तेनों मौत नहीं दिखाई दिती। तू कबर ते अपनी वल्दियत लिखी, अपनी जात पात लिखी, अपना नाम दाम लिखे है, तेरे गुण लिखे हुए ने। कबरां दे ते मुसलमान लिखांदे ने, ईसाइयां दी कबरां ते भी मैं देखे ने। लंदन दे गुरुद्वारा साउथ हाल दे सामने कब्रिस्तान है बहुत वड्डा। ते सवेरे शाम थोड़ी जी मैनू टहलन की आदत है, उत्थे होर कोई जगह है नहीं, मैं कब्रिस्तान चला जाना। अंदर सड़क बनी हुई सोहनी जी, 2-3 चक्कर लाए, मील 2 मील हो जाता है। कबरां ही कबरां, ते हर कबर उत्ते कुछ ना कुछ उपमा लिखी हुई है उसकी, जिहड़ा कबर दे पिया है, उसकी वल्दियत, उसका जन्म, फिर उसकी महिमा। पता नहीं उसदे गुण कोई सन के नहीं है, उसदे गुण भी लिखे हुए हैं। मैं देखदा एक पिंड दे एक बंदे नूं सारे ही भंडदे ने, पर जिस दिन मर जाए फिर सारी उपमा कर दें। हैरानगी हो जाती, मुर्दे च खूबियां दिखाई देने लग पैंदियां ने, जीवदे जागदे च नहीं। ये आलम कहता है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तो नहीं मरिया, तेरी वल्दियत लिखी है, तेरी जात पात लिखी है, तेरी गोद लिखी है, तेरे गुण लिखे हैं, तेरी सिफतो सलाह लिखी हुई है, तेरा जन्म का ठिकाना लिखा है। हैरानगी की गल, मर के भी तू नहीं मरिया। पर जे किसी बच्चे नूं मौत दिखाई दे जाए तो ये बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, ये बच्चा संत है। बच्चे नूं ते जवानी भी नहीं दिखाई दे सकती, ते जवान दे बोल भी नहीं सुन सकता। मौत दे बोल सुन ले इसने, मौत नूं सुन ले, बड़ी वड्डी गल। कदी कदाई कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कदी कदाई कोई बाबा बुढ़ा, कदी कदाई कोई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम साहिबजादे, ते कदी कदाई वक्त दा एक अवतारी पुरुष धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। कमाल दी गल, उम्र ते कुछ भी नहीं, 5.5 साल दी उम्र। ये अगे दी गल सुनदे ने, अगली किस खबर ना पाई। महाराज कहने अगे दी किस नूं समझ, किसी नूं भी नहीं। घर दे कोई मर भी गया तो मौत दी किस नूं समझ है, अगली किस खबर ना पाई, कुछ भी नहीं समझ। मौत दा प्रत्यक्ष सबूत भी सामने मौजूद होवे तां भी मनुख कबूल नहीं करता, ये मरिया मैं थोड़ी मरना है। पर कबीर कहने पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जा। जो पड़ोसी दे घर होया तेरे घर भी होने वाला और तेरे नाल होने वाला है। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। पर मौत अगे दिखाई देवे। वैसे तो कुदरत ने अखां ते अगे बनाइया, पिछे नहीं लाइया, अगे देख। और अकल भी इस वास्ते दी अगे दी सोच। लंघ गया पिछला हाथ दे ची नहीं, अगे दी सोच। और अगली किच खबर ना पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। तो मैं फिर अर्ज करा, एक बच्चा जवान नो नहीं सुन सकता। और गुरु अंगद देव जी ने तो इस संबंध 2 श्लोक लिखे ने बड़े कीमती। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस होने हो, पानी अंदर लेक जाओ इसदा थाव न थे हो। नाल इयाणे अपने तो छोटे, अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, ममता का संबंध हो सकता है, प्यार का संबंध हो सकता है, मोह का संबंध हो सकता है, दादे ते पोतरे का, प्यो ते पुत्र का, दादी ते पोतरी का। दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती लिए समतल चाहिए, विचार वटांदरा चाहिए, विचार वटांदरा।
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਕ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਮਾਨਤ। ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੇਂ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੱਲ, ਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਪਰ ਭਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो खैर मैं गल जो है लमकावा ना, हर मनुख जितना अपने बोलां राही प्रगट होंदा है और किसी राही नहीं। इसलिए बोलां तो पता चल सकता है तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, जल्दबाज है, सबर शांति वाला है, क्रोधी है। इसलिए बोल दसते हैं, बोलत ही पहचानिए हैं, साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबैनिक से मुख की बाट। जे मनुख की पूरी पहचान उसके बोला राही है, मैं फिर अर्ज करा रंग रूप दे राही सब पहचान अधूरी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो पैमाना रंग रूप का रख लेंदे ने वो धोखा खा जाते हैं। उन्होंने अष्टावक्र नूं पत्थर मारे, उन्होंने व्यास की उस जमाने तोहीन की थी, करूप बंदा सब तो करूप। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, परमात्मा सदा बोल रहे है, ठाकर हमरा सद बोलन था, सदा बोल रहे है। वो जो सदा बोल रहे है, जद कदी ये बोल किसी की पकड़ दे आ जाते ने वो जगत नूं सुणांदा है, बस वही पुरुष अवतार ने, गुरु ने, पैगंबर ने सीधे सुन लिया, परमात्मा नूं सीधा ही सुन लिया। ते जो गुरु पैगंबरां दे राही, अवतारां दे राही सुन के निरंकार नाल जुड़दे ने, भगत ने, संत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने। अवतार ते ब्रह्म ज्ञानी च बस इतना ही अंतर है, जुड़दे हो भी परमात्मा नाल।
ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੰਤਰ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜੀਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਵੇਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਦਾਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਲਈ। ਕਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੁਖਵਾਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਵਕਤ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, तो थोड़ा जिहा आप वक्त दान करना। थोड़ा समा बहुता नहीं लिया करांगे, घंटा कम से कम 24 घंटिਆਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਮ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਮ। तो आपने समाधान करना है ताकि दास तुझ बुद्धि अनुसार आपनु गुरु दे मंत्र सरवण करा सके। बोल चुक दी क्षमा। रवि रूह ते आप सब संगता दा हार्दिक स्वागत। वाहिगुरु कृपा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।